بیسکلی. اور یہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ شعر و شاعری ہوتی ہے, کچھ میں اور سمی بھی کبھی تھوڑی بہت کوشش کر لیتے ہیں چھوٹی. آپ کو کوئی شعر یاد ہے ویسے؟ آپ بولیں گی تو سنا دیں گے. بس بس بول دیا. لیکن میرا تو مطلب نارمل سا ہی ہوگا, ایسا بھی نہیں ہوگا ڈبے میں ڈبے میں نارمل بھی بہت کمال ہوگا. ڈبے میں ڈبے میں کیک والا نہیں ہے, اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ ایک غالب کا شعر ہے نا کہ ان آبلوں کے پاؤں سے گھبرا گیا تھا میں, جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. واہ, یہ تو بڑا کوئی ڈیپ شعر ہے. کل ہی میں نے اسٹیٹس لگایا. دیکھیں ابھی جو آپ نے جو واہ واہ سنی ہے نا, میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. جو ہمارے اس سیگمنٹ کے ججز ہوتے ہیں جو کہ اس کو پورے کمپٹیشن کو جج کرتے ہیں اور فاتح کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون جیتا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے سیف الرحمان جعفر صاحب, نور الہرا صاحبہ, انجینئر طلحہ عالم صاحب. السلام علیکم. یہ تینوں مختلف مقابلوں میں فاتح رہ چکے ہیں اور اس کے بہت ایکسپرٹ ہیں شاعری کے. ہم ایک ایک شعر ان سے بھی سنیں گے, آپ صرف دیکھیے گا. اور ابھی آپ کے شعر پہ انہوں نے واہ کہا تھا. انہوں نے واہ کہا تھا. میرا نہیں تھا, غالب کا تھا بھائی, میں نے تو پڑھا. غالب صاحب کا شعر ہے نا یہ. صحیح کہا تھا, غالب صاحب کا شعر صحیح کہا تھا. کیسا پڑھا تھا منیب؟ ہے نا, مجھے لگا بہت بھائی یہ اصل میں نا, یہ میں میٹرک میں تھا نا تو اردو میں یہ آیا تھا اور یہی مجھے جو ہے نا وہ سب سے اچھا یاد تھا. مجھے یاد تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بیوی پہ روتی ہے, تشریح کرنی ہوتی تھی تو یہ میں نے رٹا لگایا ہوا تھا, یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. اچھا منیب, ہمارے پاس ہمارے دو پارٹیسپینٹس بھی موجود ہیں یہاں بیت بازی کے. حماد الرحمان ہزارہ یونیورسٹی سے اور مناہل زبیر کینٹ کالج ملیر کینٹ سے. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہے, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ اتنے خطرناک ججز کے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہو کہ پریشر تو نہیں فیل کر رہے؟ اچھا ہبہ کیا چاہیں گی, ہم پہلے شعر سنائیں یا پہلے ججز سے ریکویسٹ کریں؟ میرے خیال میں پہلے ہم کر لیتے, چلیں برا پہلے ہو جائے اچھا بعد ہو جائے. ہم بھی روز کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کریں. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم آخری روزے تک ایک اچھا شعر پڑھ ہی دیں گے. جی ہبہ. اچھا نہیں, آپ ہی ہیں. اچھا جی دیکھیے یہ تو حال ہے. سب جن کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں, وہ رنگ میری آنکھ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں. اب کس کے لیے لائے ہو یہ چاند ستارے, ہم خواب کی دنیا سے نکل آئے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. ایک تم ہو کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی, ایک ہم ہیں کہ ہر شور سے اکتائے ہوئے ہیں. سب دل سے یہاں تیرے طرفدار نہیں ہیں, کچھ صرف میرے بغض میں بھی آئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. جی طلحہ بھائی پہلے آپ سے. ہاں بالکل سمی بھائی, آج کا دن چونکہ کل رات کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہم سب کا. ایک بہت بڑی قداور شخصیت جناب سید سلمان گیلانی صاحب انتقال فرما گئے. بہت بڑے شاعر تھے, ان کو شاعر ختم نبوت بھی کہا جاتا تھا. طنز و مزاح کے بھی بہت بڑے شاعر تھے. جب بھی عید کا کوئی موقع آتا یا کوئی بھی خوشی کا موقع آتا, ہم دیکھتے کہ مختلف چینلز پہ ان کے طنز و مزاح کے جو اشعار تھے وہ سارے کلمات سے ہم محظوظ ہوتے تھے. آج وہ ہم میں نہیں رہے تو ہم سب ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سید سلمان گیلانی صاحب کو, اور میں ان کے کچھ اشعار آج پیش کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. کہ ساقی یہ تیری مست نگاہی کا فیض ہے, پیتا ہوں میں شراب مگر جام کے بغیر. ہر روز ماں کا چہرہ میں تکتا ہوں پیار سے, ہر روز حج میں کرتا ہوں احرام کے بغیر. سبحان اللہ. گیلانی ایسے دوست کا بے دام ہوں غلام, گیلانی ایسے دوست کا بے دام ہوں غلام, مجھ سے جو ملنے آئے کسی کام کے بغیر. واہ 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 واہ, ویری نائس. جی نور صاحب. شاعر ماشاءاللہ شاعری میں اکثر یہ ساقی جام یہ اس طرح ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ایک معصومانہ سوال ہے یار. اکثر ہم سنتے ہیں شاعری کے اندر جام, ساقی, میں خانہ, میں قدا, کیا وجہ بتائیں نا یار. سیف کون آپ بتائیں گے؟ انجینئر آپ کا شعر ہے, آپ ہی بتائیں. سیف بھائی بتا دیں تو. چلے آپ عید کے بعد بتا دیجیے. اتنا کنٹروورشل سوال تھا کہ کوئی جواب نہیں دے. کچھ اصل میں موضوعات ہر وقت اپنے موضوعات کا فیصلہ کرتا ہے. تو اس وقت میں جب جام, میں قدا, ان چیزوں کے ساتھ یہ چونکہ ایسے موضوعات ہیں کہ جنہیں تشبیہاتی سطح پہ استعمال کیا جاتا ہے. جام سے, ساقی سے مراد دیگر چیزیں لی جاتی ہیں, یعنی براہ راست یا دیکھنے میں تو وہ جام ہے لیکن پس پردہ وہ بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے یہ موضوعات تشبیہ سمبولکلی. ایگزیکٹلی. تو ججز سے شعر و شاعری. نور آپ کی باری ہے, پھر ہم اپنے کوئز کی طرف. بہت شکریہ. دو اشعار ہیں کہ آپ جو بیٹھنے نہیں دیتے, آپ
एक रोज कुर्सियां देंगे, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। फिर वही बात। शेर तो अच्छा था लेकिन मेरी बात वही है। लेकिन ये देखिए कि थोड़ा पहले माइक करीब करके जाम बोलिए। और साकी ये क्लासिकल शायरी में ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। आज के ज़माने में सादा लैंग्वेज होती है, तो इसमें शराब का लफ्ज़ आया, जाम या साकी, इस तरह की। सही। मैं इसी तला भाई का जो सिलसिला था उसको आगे बढ़ाते हुए, इसमें कोई शक नहीं कि अदब का बड़ा नुकसान हुआ आज, और अदब ने एक बहुत बड़ा आदमी, एक कदावर शख्सियत गंवाई है, सैयद सलमान गिलानी साहब। तो मैं ज़ाहिर है इंतहाई मोतबर आदमी, औज कमाल मजहबी शायरी में, औज कमाल अपनी मज़ाहिया शायरी में, तो मैं उनके अशार से फिर हम आगाज़ करते हैं। बेसिकली सुना तो होगा ये किस्सा जनाब यूसुफ का, पियाला भाई के सामान से निकल आया, मैं जिसका पूछता फिरता था गुल फरोशों से, वो फूल घर के ही दालान से निकल आया। तुम्हारे गम की कहानी सुनी तो गीलानी, मैं अपने हाले परेशान से निकल आया। आया अलिफ से हम शुरू करेंगे मुकाबला। सुभान जी, अलिफ से अलिफ से हमादुर रहमान से शुरू करें। उस गुल बदन की बूए कबा याद आ गई, संदल के जंगलों की हवा याद आ गई, घबरा के चांद छुप गया बादल की ओट में, क्या कहने, बेसाख्ता वो जाने हाया याद आ गई। याद आ गई। शकीब जलाली साहब, क्या बात है भाई। मनाहिल। ये रत जगे, ये मोहब्बत, ये मैकशी, ये हिज, हमारी पुतलियों के गिर्द हूँ तो होना था। हमारा मसला दिल भी है और दुनिया भी, हम ऐसे दोगलों को बेसुकून तो होना था। होना था। अलिफ। अलिफ। इसीलिए मैं दरीचा खुला नहीं रखता कि तुझ बदन की महक ने इधर नहीं आना। हमारा अगला सफर धूप का सही, लेकिन तुम्हारी छांव में अब लौट कर नहीं आना। अलिफ। उसने आवारा मिजाजी को एक नया मोड़ दिया, पाबाए जंजीर किया और मुझे छोड़ दिया। उसने आंचल से निकाली मेरी गुमगश्ता बयाज और चुपके से मोहब्बत का वर्क मोड़ दिया। इसीलिए तो तेरे दर पे गिर गया था मैं जानता था मुकद्दर यहाँ बदलते हैं। वो जब यहाँ था तो हम देखते न थे उसको, वो जा रहा है तो हम खिड़कियां बदलते हैं। वाह 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 वाह। ये इश्क हमको गलत फहमियों में डाल गया, वगरना मैं हूँ हैं नून, वो जा रहा है तो हम खिड़कियां बदलते हैं नून। निशाना बाज कोई है उदू कोई और, किसी का तीर किसी की कमा से आता है। मुझे कमी नहीं रहती कभी मोहब्बत की, ये मेरा रिस्क है और आसमां से आता है। अच्छा, जहाँ पे ये आखिरी पे खत्म करेंगे, उसी वर्ड से शुरू कर दीजिए। आखिरी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से। ये जो टूटे फूटे अलिफ आता है, ये है ठीक है। ये जो टूटे फूटे मिसरे तेरे पाँव में पड़े हैं, ये अटक के एक शायर का सलाम है खदीजा। मेरे आका रोजे महशर मुझे देखकर ये बोले, इसे अपने साथ रख लो, ये गुलाम है खदीजा। क्या बात है। वाह। अली आरिश। गरीदा। हे। हमें फजूल अजीरन समझ के फेंक दिया, उठाया जिसने भी फौरन समझ के फेंक दिया। तुझे किसी ने बताया नहीं कि दुनिया को तेरे फकीर ने उतरन समझ के फेंक दिया। अभी किसी के न मेरे कहे से गुजरेगा, वो खुद ही एक दिन इस दायरे से गुजरेगा। कसूरवार नहीं फिर भी छुपता फिरता हूँ, वो मेरा चोर है और सामने से गुजरेगा। क्या बात, वाह। एक रोज उसने चंद सितारे बुझा दिए, उसे लगा था कोई उन्हें गिन नहीं रहा। पहले ये रब्त मेरी जरूरत बनाओगे और फिर कहोगे राब्ता मुमकिन नहीं रहा। वाह। ये तो सुबह तक चलते रहेंगे दोनों, माशाल्लाह। नहीं, इनके पास 5 मिनट का वक्त है। रहा। अलिफ। अंधेरा, तहय्युर, खामोशी, उदासी, मुजर्रद हयूले जुनू बेकरारी, ये तफसील सुनकर समझ तो गए हो मैं दिन का नहीं रात का आदमी हूँ। तुम्हें ये गिला है कि मैं वो नहीं जिससे तुमने मोहब्बत के पैमा किए थे। मुझे भी ये महसूस होने लगा है कि मैं वो नहीं दूसरा आदमी हूँ। 1 मिनट 30 सेकंड बाकी है। ठीक है जी। जी मनाइल।
नई मंजिलों की तलाश थी सो बिछड़ गए, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना। मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, कोई आके मुझसे ये पूछता तेरा क्या बना। क्या बना। ऐसा भी तेरा तीर निशाने पे नहीं था, बस खुद को बचाया ही नहीं वार से मैंने। अच्छा। गो अब वो ना चेहरा है, ना लब है, ना वो आंखें, पहचान लिया है तुझे रफ्तार से मैंने। रफ्तार से मैंने मैंने ये आएगा ना। ये जी देश हमको गलत फहमियों में डाल गया, वगरना मैं हूँ जरूरी ना तू जरूरी है। जरूरियातें जहाँ हमसे पूछने वाले, तुझे ये कैसे बताएं कि तू जरूरी है। ये जो अंगूर की बेलों पे है पहली बारिश, सिर्फ बारिश है कि मिलने का इशारा कोई है। इसको कहते हैं मोहब्बत का पलट कर आना, उसी शिद्दत से मेरे साथ दोबारा कोई है। 30 सेकंड। आखिरी 20 सेकंड। 30 ये कोई है। ये यार सारे ही बड़े दिल के मिले हैं मुझको, जब भी जख्म देते हैं मुझे बड़ा देते हैं। हम हैं गुर्बत में गुजारे हुए वो अयाम, जिन्हें लोग जब तख्त पे आते हैं भुला देते हैं। ठीक है मनाइल, टाइम्स अप, खत्म टाइम्स हुआ। अप, टाइम्स अप। जी अच्छा जी, आज मैं अपनी मायूसी का इजहार कर दूं कि आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मुकाबला नहीं हुआ, और ये वजाहत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जरूरी। मुकाबला चूंकि आगे बढ़ रहा है तो अब मज़ीद टफ होना चाहिए, अच्छी तैयारी के साथ लोगों को आना चाहिए। आज मुकाबला वाज़ेह है और इसमें कोई दो राय नहीं है। टीम बी ने बेतहाशा वज़न की गलतियाँ की और तलफ़ुज़ की गलतियाँ, वरक लफ्ज़ है, वर्क पढ़ा, ज़रूरी है, ज़रूरी पढ़ा, दीगर बेतहाशा वज़न की गलतियाँ थीं। और आज मुकाबला जी वाज़ेह है, टीम ए आज की फातेह है और ये मुश्तरका है। रहमान। जी, और टीम ए के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं ये अब चले जाएंगे अगले राउंड के अंदर। हाँ जी, इन्होंने क्वालिफाई किया अगले टीम ए आप हमाद आप क्वालिफाई कर गए आप हजारा qualify कर गए यूनिवर्सिटी से। और जितने भी क्वालिफाई किए हैं मुनीब, इनके लिए एक फाइनल कंपटीशन होगा, उसके ऊपर इनामात भी बहुत ज़्यादा हैं। जो फाइनल विनर होगा उसके लिए मरहबा गुलबहार की तरफ से एक अदद बाइक और साथ ही साथ रनर अप के लिए LED। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा। और सिर्फ यही नहीं, मल्टीनेट की तरफ से विनर के लिए 43 इंच की LED टीवी, रनर अप के लिए 32 इंच की LED टीवी, वाव। डॉल्बी ऑडियो और स्मार्ट एंड्रॉइड सिस्टम के जरिए तेज तरीन परफॉर्मेंस और मुकम्मल एंटरटेनमेंट कंट्रोल। और इन सब के साथ साथ जी, नेल्सन नेल्सन पेंट्स, पेंट्स। रंग जिंदगी का नेल्सन पेंट की खुसूसियत, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट के मिकदार में ज्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। विनर के लिए एक मोटरसाइकिल, रनर अप के लिए वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो काफी रनर मजे अप के के लिए इनामात भी हैं। हमारे पास गिफ्ट्स मौजूद हैं। मनाहिल, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप। रो रही है मनाहिल। नहीं अच्छा ठीक है। नहीं वो कैंट कॉलेज से वो नहीं रोएंगी। ओह, ठीक है। तो मुनीब कैसा लगा मुकाबला? मुकाबला बहुत अच्छा था माशाल्लाह। मुकाबला वैसे तो काफी मुझे तो इन्होंने बताया है हाँ। कि जरूरी क्या पढ़ा था इन्होंने, जरूरत जरूरी होता है जरूरी। और यार ये तो उन्होंने हम पढ़ा इतनी जरूरी। गलतियां अच्छा, नहीं, गलतियां हम भी करते होंगे जरूरी ड्रामे बोलते में। हैं, हाँ, नहीं नहीं, कहीं ना कहीं गलती आती है। कुछ अल्फाज आप नॉर्मल लैंग्वेज में मुख्तलिफ तरीके से अदा होते हैं और शायरी में कुछ तलफ़ुज़ हल्का सा फ़र्क पड़ जाता है। असल में ये रियायत दी जाती है, हम आम तौर पे इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गलतुल आम। तो गलतुल आम। वो जो राइज हो जाते हैं उन्हें गलतुल आम पे रियायत मिल जाती है। ठीक तो है। शेर में वो रियायत हम नहीं देते, इसलिए हम लिटरेचर, कहते हैं कि हाँ। ज़र्ब लगाई ऐसे ही, जाए, ऐसे तो हम ही। लगाते नूर, हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी मनाहिल से? जी, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे आज की रनर अप हैं, आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना और डिसहार्ट नहीं होना। आपने भी अच्छे अशार पढ़े, लेकिन थोड़ी सी तैयारी की, प्रैक्टिस की कमी थी। लेकिन खुशाइंद बात ये है कि जिस माशरे में, जिस माहौल में हम रहते हैं, बहुत से मसाइल का और प्रॉब्लम्स का सामना करके हम यहाँ इस स्टेज तक पहुँचते हैं। तो बीइंग अ फीमेल वो मसाइल डबल होते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट यह है कि आप आज यहाँ इस स्टेज पे मौजूद हैं। और बाकी लड़कियाँ जो ज़िंदगी में कुछ भी कर रही हैं, आपने उन सब से हट कर अपने लिए एक रास्ता चुना और आपने डिसाइड किया कि आप कुछ ज़िंदगी में मुख्तलिफ करेंगी। तो ये आपकी आज की अचीवमेंट है और आपने डिसाइड बिल्कुल नहीं होना है। इंशाल्लाह आई विल सी यू अगेन ऑन एनी स्टेज, इससे बेहतर तैयारी और मेहनत के साथ। और मनाहिल, एक बात मैं भी कहना बहुत चाहूँगा सारी कि तालियां और दुआएं आपके लिए। कि आप हारते नहीं हैं जब तक कि आप खुद अपने आप को हरा ना दें और आप वो काम छोड़ ना दें। ऐसा ही
तो Give up नहीं करना। आपने कोशिश करनी, कोई बात नहीं, एक बार फेल होंगी, दूसरी दफा नहीं कर पाए, तीसरी दफा कामयाब होंगे आप। थैंक यू नूर, वैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट You're हाईलाइट किया, थैंक यू। जी जी तला, आप कुछ कहना चाहेंगे? समी भाई देखें, इस वक्त जो नौजवान है ना उसकी कुछ तरजीहात हैं जो तब्दील हो चुकी हैं, और इस तरह के जो चंद नौजवान हैं जिनका लगाव अदब के साथ है, लिखने पढ़ने के साथ है, बोलने के साथ है, मैं तो कहूँगा कि सच्चाई थी, एतमाद था, बंदगी थी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे तब जिंदगी थी। वाह वाह ये वाह, मुकर्रर। दोबारा 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 जी। अब लाइफ है। थी, एतमाद था, बंदगी थी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे तब जिंदगी थी। जिंदगी थी। किताबों को हम पढ़ते थे, उसमें से चीज़ें निकालते थे। तो आज जो हमारे नौजवान हैं ना, जो ये प्रैक्टिस करते हैं, मुकाबला करते हैं, रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, ऑडिशन देते हैं, और फिर उसके बाद इस स्टेज पे आके खड़े होकर मुकाबला बोलते हैं या मुकाबले में आके अपने आप को पेश करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो सिर्फ उन्मा थे, असल दास्तां तुम हो। वाह, तो आप खूबसूरत लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है, जारी रखें, क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था कि मुद्दतों के बाद ख़त जो मिला नाज़नीन का, मारे खुशी के डाकिए का गाल चूम लिया। खत तो खिताबत होती थी ना, अब तो वो सारी चीज़ें, वो इक़दार ख़त्म हो गई। तो लिहाजा इस चीज़ को जारी रखिएगा ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में हो।